So let's start our second lecture in cell physiology, and that is mainly about the potentials and excitation contraction coupling in various muscle types. अच्छा, पहले we have to understand what is diffusion potential. Second one is equilibrium potential, and after these two potentials we will come to our main topic, that is resting membrane potential. So what is diffusion potential? As the name indicates, that let's suppose here is a cell. Let me make it with a different color. Here is a cell, okay? And inside there are a large number of molecules and outside small number. So because of this concentration gradient, these molecules will move out of the cell, and this is called diffusion potential. And that most of the time happens with the leaky potassium channels. Leaky in a sense that we have told that there are no gates and door channels, so they may move in and move out based on the concentration gradient. Now the tricky one is equilibrium potential. What is equilibrium potential? Now let me first once again consider a cell. Now this is a cell, is it okay? Now there are 10 negative molecules. Let me write 10. Now also at the same time there are 12 positive molecules, and outside there are just 3 positive molecules. So now let's concentrate on these positive molecules. You can see that the number of positive molecules inside is more than the number of positive molecules outside. So based on the diffusion potential, it is likely that these molecules will move outside. So let's suppose this is one molecule moving outside, and this is the other molecule. So here it remains 10 molecules. Now even then you can see that inside the number of the positive molecules is more than the outside, but there is no more net diffusion taking place, and that is because that inside the 10 negative molecules are holding these 10 positive molecules, and this condition is called equilibrium potential. In simple word, we can say that equilibrium potential is a state where the tendency of ions to flow from the higher concentration gradient towards lower concentration gradient is balanced by the charged particles of the opposite charge. So hope the diffusion potential and the equilibrium potential is understood. Now let's come to the resting membrane potential. The resting membrane potential, it is actually, once again let's us make a cell. It is interior of the cell and it is exterior of the cell. So ये इंटीरियर जितना नेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू एक्सटीरियर, इसको हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और नॉर्मली जो है हमारे साथ नर्व सेल में -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है. इट मीन्स कि ये सेल इनसाइड -70 millivolt ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू द outside environment. So it is expressed as intracellular potential relative to the extracellular potential. The resting membrane potential of nerve is -70 millivolt, which is closer to the equilibrium potential of the so it is millivolt of the potassium. तो अगर ये पोटेशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के करीब है, एंड नाउ होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. इसका मतलब ये है कि पोटेशियम मोर इजीली इन एंड आउट ऑफ दिस सेल आता जाएगा एज कम्पेयर टू द सोडियम जिसका प्लस 65 है. एंड यू कैन सी के प्लस 65 इससे कितना दूर है. पहले तो इसने जीरो पे आना होगा, तो ये -70 ट्रेवल करना होगा और फिर +65 पे जाना होगा. ठीक है, तो this much travel it has to do to reach the equilibrium potential of the sodium, but for potassium it only needs -15 more. ठीक है, so it is more closer to the potassium equilibrium potential. It means that in a resting cell is more permeable to potassium than sodium, and note that sodium potassium pump जो है indirectly contribute करता है to resting membrane potential. या ये समझ ले कि सोडियम पोटेशियम एडीपीएस है, ये एक बदमाश है जो कि ये जबरदस्ती -70 अंदर रखना चाहता है. लेट सपोज ये सोडियम अंदर आ भी गया है, तो ये क्या करता है, सोडियम को बाहर निकाल देता है और पोटेशियम को अंदर कर लेता है.
व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल सिंपली आप याद रखें कि आप इंटीरियर ऑफ द सेल अगर नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, एंड द सेल विल गो टू स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, सो क्या होता है, लेट सपोज ये वही सेल मेम्ब्रेन है जो हमने पढ़ा था, इसमें ये सोडियम चैनल है, ये इसका एक्टिवेशन गेट है जो क्लोज है, और ये इनएक्टिवेशन गेट है जो ओपन है। इम्पल्स आ गया तो क्या होता है कि ये एक्टिवेशन गेट सडनली ओपन हो जाएगा एंड देयर विल बी रश ऑफ सोडियम टू द इंटीरियर ऑफ द सेल, और ये स्लो स्लो क्लोज होता रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेट इसका ऐसे हो जाएगा कि आफ्टर सम टाइम ये तो ओपन रहेगा एक्टिवेशन गेट, ये इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा एंड देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द सोडियम इनसाइड द सेल। ठीक है, सो एट दिस स्टेज अगर आप इस सेल को जितना भी आप इसको इम्पल्स दे दो, आप और सोडियम अंदर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हमें पता है कि इम्पल्स जो है ये इनएक्टिवेशन गेट जो है इसको क्लोज करता है और एक्टिवेशन को ओपन करता है। तो ये तो ऑलरेडी क्लोज है, आप और इम्पल्स दोगे तो आप इसको और टाइट क्लोज करोगे, तो दो के वो ऊपर वाला गेट जो है वो तो ओपन होता है लेकिन ये क्लोज होता है, और यहाँ पे सिर्फ सोडियम की डंपिंग होती है, अंदर सोडियम नहीं आता। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। नाउ impulse gun opens the sodium gates and mainly the activation gates. ठीक है, inactivation को close करेगा, and there are two types of sodium gate. One is activation, so in the resting state they are closed, and in response to the impulse they there is depolarization and they are opening rapidly. Inactivation जो है, in the resting state these are open, and in response to depolarization they gets closed बट स्लोली। तो जब सेल डिपोलराइज होता है तो ये ओपन रहेगा, लेकिन सेल डिपोलराइज हो गया तो ये इनएक्टिवेशन क्लोज होगा। ठीक है, नाउ कंक्लूजन क्या है कि एक्टिवेशन गेट्स जो है सोडियम के, ये डिपोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में ओपन होंगे, और डिपोलराइजेशन क्या होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, और इनएक्टिवेशन गेट्स जो है दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द सेल एंड प्रिवेंट फर्दर डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन होगा तो ये गेट क्लोज होगा। और पोटेशियम चैनल जो है, through these channels, potassium moves outside from the inside of the cell and bring the conduction back to the resting membrane potential. They oppose the inside current of the sodium. Now let me make this topic a little clear. ये लेट सपोज हमारे साथ सोडियम चैनल हो गया और ये पोटेशियम। पोटेशियम हमेशा चाहेगा कि ये इनसाइड सेल नेगेटिव रहे, ठीक है, और सोडियम चाहेगा कि इनसाइड सेल पॉजिटिव हो। हमें पता है कि सोडियम बाहर ज़्यादा है जबकि पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा है। ठीक है, नाउ अगर सोडियम इनसाइड आ रहा है तो क्या होता है कि मीन वाइल पोटेशियम सेंस कर लेता है कि दिस सोडियम इज डैमेजिंग दिस -70 मिली वोल्ट। तो इन रिस्पॉन्स डिपोलराइजेशन के इसका ये गेट ओपन हो जाता है एंड इट मूव्स आउटसाइड द सेल, दैट इज व्हाई ट्राइंग टू ब्रिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स द नेगेटिव स्टेट, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड्स। अगर ये डिपोलराइजेशन को ख़राब करता है तो ये गेट जो है ये ओपन होगा, लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाएगा क्योंकि पोटेशियम बाहर निकल रहा है। मीनवाइल अगर एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आप दे दो तो इसको क्लोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन मोर सोडियम को अंदर लेके आएगा, एंड इन दिस स्टेज यू कैन ओवरकम द रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। जबकि एब्सोल्यूट जो है वो इनएक्टिवेशन गेट की वजह से होता है, और उसको आप जितना भी बड़ा इम्पल्स दे दो उसका आप लोग कुछ नहीं कर सकते। Now, once again, the concept of refractory period. So the one is absolute and the other one is relative. तो अगर उस टाइम आपको समझ नहीं आ रही तो ये टेक्स्ट रीड करके आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। It means कि no action potential possible during the absolute refractive period, and no matter how larger the implied impulse is. And reason क्या है कि we note that during the depolarization sodium inactivation gates closes slowly and only duration of time sodium ions moves inside। ठीक है, तो only during their duration of time sodium moves inside, but once these gates are closed there is no entry of sodium ion possible, and you have to wait for the resting membrane potential where these gates will open up again। Now relative क्या होता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल पॉसिबल होता है इफ यू अप्लाई एन इफेक्टिव इम्पल्स। और रीजन क्या है इसका, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द पोटेशियम चैनल्स आर ऑफरिंग रेजिस्टेंस।
और ओपनिंग रेजिस्टेंस क्या करते हैं कि अगर सोडियम अंदर आ रहा होता है तो पोटेशियम बाहर जा रहा होता है, ठीक है। और पोटेशियम डिपोलराइजेशन को ख़राब करता है, और मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ डिपोलराइजेशन को ख़राब करेगी वो इनएक्टिवेशन गेट को ओपन करेगी। Now the inactivation gates are open. So if you apply a proper impulse, those will open the activation gates of sodium, and sodium will rush inside, producing action potential. Input to synapse. तो synapse क्या होता है? ये न्यूरॉन आता है, तो ये या दूसरे न्यूरॉन के साथ या ये मसल्स के साथ एक कनेक्शन बनाता है, हैविंग ए स्मॉल स्पेस इन बिटवीन, जिसको हम यूरो में डिटेल में पढ़ेंगे और समझे कि इसको हम साइनेप्स कहते हैं। तो साइनेप्स पे हमारे साथ टू टाइप्स के एक्शन पोटेंशियल होते हैं, एक है एक्साइटेटरी और दूसरे हैं इनहिबिटरी। अच्छा, पहले इसके एक्साइटेटरी पढ़ लेंगे। तो लेट्स सपोज वंस अगेन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो चैनल है उसको हम सोडियम पोटेशियम चैनल कहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे सेपरेट चैनल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम नहीं होते। थ्रू दिस सेम चैनल सोडियम ने भी इन आउट होना होता है एंड पोटेशियम ने भी अक्रॉस दिस चैनल मूव करना होता है। नाउ यहाँ पे एक लाइगेंड के लिए रिसेप्टर है और ये क्लोज्ड कंडीशन में है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन लेट सपोज बाउंड हो गया, दिस इज एसिटाइल कोलिन। तो ये क्या करेगा, इस गेट को ओपन करेगा, और गेट के ओपन होते ही सोडियम इनसाइड आएगा, और सोडियम इनसाइड आएगा तो डिपोलराइजेशन होगी, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन एट एक्साइटेटरी terminals, ठीक है। सो ब्रॉट अबाउट बाय एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन। मैकेनिज्म ये है कि ओपनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल दैट विल डिपोलराइज द सेल, एंड सोडियम पोटेशियम चैनल इज अ सिंगल चैनल थ्रू व्हिच both ions mean both potassium and sodium ions move in and out of the cell. एग्जांपल्स क्या है, ग्लूटामेट है, सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन। अच्छा, इनहिबिटरी कौन से हैं? इनहिबिटरी यहाँ पे वंस अगेन लेट मी मेक ए सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे लाइगेंड का रिसेप्टर हो गया। अच्छा, इनहिबिटरी और ये क्लोज स्टेट में है। नाउ लेट सपोज यहाँ पे एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो जाता है, लेट सपोज गाबा। ये गाबा क्या करता है, इसके गेट को ओपन करता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ सोडियम मोर क्लोराइड मूव्स इनसाइड द सेल। तो हमें पहले के ऑलरेडी से -70 है, और क्लोराइड अंदर ले जाओ तो इसको मोर माइनस कर देगा, तो इसको मोर माइनस एड कर देगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको इसके एक्साइट करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा सोडियम्स चाहिए होंगे। तो इट मीन्स कि ये सेल को और भी इनहिबिटरी स्टेट में लेके जा रहा है। सो ब्रॉट अबाउट द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म ये है कि गाबा काजेस the opening of the chloride channel and cell will become more hyper polarized। और एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन, गाबा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। और ग्लाइसिन जो है मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है स्पाइनल कॉर्ड में, और गाबा मेनली न्यूरोट्रांसमीटर है इन द ब्रेन, ठीक है। ये आगे जाके हम इंशाल्लाह न्यूरो लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे।